Hello everyone and welcome to Maluka IAS. The topic for the day is extremely important for international relations. इस particular topic में हम लोग बात करेंगे about the prominence of India. अब United Nations और United Nations Security Council की efficacy has been questionable for a very long time. जिस वजह से different countries अपनी different bilateral और multilateral groupings over the years बनाती हैं. आज जिन दो ग्रुपिंग्स की हम बात करेंगे, एक है ब्रिक्स और दूसरा है क्वाड. इन बोथ ऑफ दीज ग्रुपिंग्स इंडिया इज वेरी मच अ मेंबर. जब हम ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एंड वेरी रिसेंटली इन दिस पर्टिकुलर ईयर they have also admitted other countries such as Egypt, Ethiopia, Iran, UAE, Saudi Arabia. अगर हम क्वाड के बारे में बात करें तो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी ग्रुप में कौन सी कंट्रीज आती हैं? देयर इज इंडिया, देयर इज यूएस, देयर इज जापान, देयर इज ऑस्ट्रेलिया. अब कहीं ना कहीं ये क्वाड की ग्रुपिंग जब बनी थी तो एक पर्टिकुलर कंट्री थी जो हमेशा फोकल पॉइंट में थी कि इस कंट्री को हमने अपने आप को थ्रेटन नहीं करने देना, एंड दैट पर्टिकुलर कंट्री वाज चाइना. Now in this very very relevant topic which is all over in the current affairs today is that क्या इंडिया को क्वाड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए एज कम्पेयर टू ब्रिक्स, कि क्या इंडिया को दोनों की दोनों ग्रुपिंग्स को हैंड इन हैंड लेके आगे बढ़ना चाहिए? सो कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस वेरी वेरी रेलिवेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू. So first things first, this is the article that we are talking about, and in this particular article, well, you must have seen even in the recent G7 summit that took place in Italy, India was invited. Now, India is not a member of the G7 countries, लेकिन उसको invite ना ही इस साल, पिछले साल भी क्यों किया जा रहा है? क्योंकि hard power is a different deal altogether, लेकिन soft power of India is increasing day by day, and we can see that with respect to, the intention and the aspirations of different countries with respect to India are ever increasing. Yes, so first things first, let's talk about what is in news. So Quad की foreign ministers की meeting हुई है in Japan end of July में, after a very very long time. पिछली बार जहाँ पे हम मैरिटाइम सिक्योरिटी के बारे में हमने इतनी ज़्यादा बातें की, अब हम मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक साउथ चाइना सी के अंदर हम देख रहे हैं दैट डिफरेंट कंट्रीज लाइक फिलीपींस एंड वियतनाम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, दे आर वेरी 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 थ्रेटेंड बाय चाइना. एंड सो एट दैट टाइम इंडिया का प्रोमिनेंस ज़्यादा बढ़ना, इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को देना, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बिग ब्रदर का रोल अडॉप्ट कर रहा है, राइट? सो जैसे कि अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, क्या ये इफेक्टिव है? दुनिया का सबसे ज्यादा अनडेमोक्रेटिक काउंसिल is the United Nations Security Council, and because of one very very simple thing, and that is the 5 permanent members. Now India doesn't have a problem with US, UK, Russia, France, but then there is one country yet again that we have an issue with, because of which sometimes we don't end up getting what we want in terms of decisions by the United Nations Security Council, and it is yet again China. So the efficacy of United Nations Security Council कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो रही है, क्योंकि ये permanent 5 members को बहुत ज़्यादा authority मिली हुई है in terms of veto powers, and so hence ऐसे type की multilateral groupings और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है. So in news, if we can talk about it, this is a very lovely line and I'd like you to utilize it every time you can, that India has moved from across the aisle to a non-ally country, and how the US is also dependent on India. We are not siding with anyone, चाहे वो रशिया यूक्रेन की वॉर हो, चाहे वो इजराइल हमास की वॉर हो. We are not siding with anyone because we are not aligning with anyone. लेकिन प्लेटफॉर्म से दूर पहले हम होते थे, और आज की डेट पे वी आर ऑन द मेन प्लेटफॉर्म. आवर प्राइम मिनिस्टर इज सीन एवरीवेयर, देयरबाय इंक्रीजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया वर्ल्ड ओवर.
इनफैक्ट आसियान कंट्रीज, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, जहाँ पे भी फिलीपींस, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं, वो भी कहीं ना कहीं चाइना के थ्रेट से सहमी हुई हैं, एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग टूवर्ड्स सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज. And like I said, the biggest example of the same was the supersonic cruise missile that we have given to the Philippines. Yes? अब अगर हम लोग क्वाड के बारे में बात करें और ब्रिक्स के बारे में बात करें, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक ये कह रहा है कि इंडिया कहीं ना कहीं ज़्यादा अहमियत क्वाड को दे रहा है और ब्रिक्स को नहीं. इनफैक्ट ब्रिक्स की अगर हम शुरुआत की बात करें तो ऑफ कोर्स वी आर वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स एंड वी वर वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन द ब्रिक्स. But over the years, कहीं ना कहीं China was advocating for admitting different countries, अलग-अलग countries. अब जब मैं as a person, for example, we have a group of friends, and in that group of friends, we have 5 friends, and each one of us has equal standing. But over the years, I start getting more friends. Now, the people that I will include in that group will be very, very loyal towards me, and the other founding members might have a problem with it. इनफैक्ट इंडिया ब्राज़ील दोनों को इनिशियली इशू था, लेकिन अब ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो उसका ट्रेडिंग रिलेशन विद चाइना तो बहुत ज़्यादा आगे है. तो कहीं ना कहीं इनिशियली हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा अपोज कर रहे थे कि चलो हम ब्रिक्स की मेंबरशिप एक्सपैंड करनी भी चाहिए कि नहीं. दैट वाज अ क्वेश्चन मार्क फॉर इंडिया. बट ऑफ कोर्स इन दिस पर्टिकुलर ईयर, ऑन द 1st of January 2024, we welcome these new countries with open heart, keeping this in mind that these countries should not just be supportive of China. They should not reduce our importance. And तो जाके कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी ग्रुप को थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है इंडिया दैन द ब्रिक्स. और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये कहा गया है कि जितना इंपॉर्टेंस हम खुद की कम कर देते हैं फ्रॉम अ ग्रुपिंग, उतनी हमारी इंपॉर्टेंस कम भी हो जाती है. सो इफ वी वांट टू इंश्योर दैट वी आर दैट इंपॉर्टेंट, वी शुड बी अग्रेसिवली अ पार्ट ऑफ every single discussion of that regional grouping. Let's move ahead. अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दिस वाज अ ह्यूज इवेंट बैक इन 2021 जहां पे इंडिया की प्रेसिडेंसी थी और इंडिया ने एनहांसिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी के बारे में बात की. इनफैक्ट वर्ल्ड लीडर्स लाइक व्लादिमीर पुतिन वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट अमंग्स्ट मेनी अदर्स. मैरिटाइम ट्रेड इज सो इम्पॉर्टेंट. हम आजकल रेड सी क्राइसिस के बारे में पढ़ रहे हैं जहां पे येमेन में बैठे हाउती रिबेल्स बहुत सारे अटैक कर रहे हैं ऑन डिफरेंट शिप्स. हमने पिछले साल G20 की प्रेसिडेंसी में ये भी देखा है कि इंडिया ने प्रपोज किया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. वो अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ क्योंकि आपको पता है कि 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने बहुत बड़ा अटैक किया था इजराइल पे, और कहीं ना कहीं ये ट्रेड कॉरिडोर हाइफा से होके जा रहा है. और ये सब कुछ हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहीं ना कहीं चाइना भी अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर रहा है. सो एनहांसिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस because of policies such as the string of pearls that is adopted by China. In fact, our national policies such as the Great Nicobar Island Project, amongst many others, are of course for development, but primarily for national security. अगर इंडिया का रोल की बात करें in Quad, we are very much important in Quad. And Quadrilateral Security Group was such a brilliant idea by the ex-Prime Minister of Japan, Shinzo Abe. This Quadrilateral Security Group is primarily so that हम Indo-Pacific region में अपना importance, अपना औहदा और ज़्यादा बढ़ा सकें, because we will not sit here and let any country threaten our national security. Yes, and so hence बहुत सारे प्रैक्टिसेस हम लोग कर रहे हैं जहाँ पे क्वाड में हम ये भी देख रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी कहीं ना कहीं पिछले साल यूएस और यूके ने बोला था ऑकस के अंदर कि वो किसको देंगे, ऑस्ट्रेलिया को देंगे. यस, सो लेट्स मूव अहेड. इंडियाज रोल, वेल, अगर हम बायलेटरल रिलेशंस के बारे में बात करें तो बहुत बेहतरीन है. चलो, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें
तो just last year we've signed an MOU with them for reciprocity of recognition of degrees. अगर हम जापान की बात करें, जहां पे पिछले साल का G7 का समिट हुआ था, तो ना ही जापानीज हेड ऑफ द स्टेट हमारे देश में आए थे, बल्कि हमारे हेड ऑफ द स्टेट भी हिरोशिमा गए थे. अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारे बायलैटरल रिलेशंस, चाहे वो डिस्कशंस की बेसिस के बात हो या फिर ट्रेड की बात हो, वो एवर इंक्रीज हो जा रहे हैं विद द यूनाइटेड स्टेट्स. सो आवर रिलेशन विद द क्वाड इज वंडरफुल. इनफैक्ट ऑकस की जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, विच इज बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, इनके साथ भी हमारे रिलेशंस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. बट लाइक आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल, the minute they said that they are going to expand the BRICS nations, that is when we had a little bit of an issue. Not because we have a problem with other countries, we are very okay with that, but we don't want one single country to have more support than others, and which is why initially there were little hiccups. लेकिन अगर आज की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है. Yes, let's move ahead. इंडिया के रोल के बारे में और इन we have already discussed this particular slide, so we can move ahead. अब अगर हम लोग बात करें रशिया यूक्रेन के बारे में, you have read it in the newspapers that the minute Prime Minister Narendra Modi went to Russia to meet Vladimir Putin, there are world leaders like the US President Joe Biden who says, you know, India should talk to Russian President about the war. That is the soft power. Although we do adopt a neutral stance, we do say our leader on a world platform does say that this is not the time for a war. But let me tell you, the best part about our country is also that we don't want to go and interfere in the internal regulations of another country. ये हमारे साथ हम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कोई और कंट्री आके हमें बताए हाउ टू ट्रीट अनदर कंट्री, और ना ही हम अपनी बात किसी और के ऊपर फोर्स डाउन करेंगे. बट इन अ वे, इन डिफरेंट वेज, वी हैव पुट इट फोर्थ अगेन एंड अगेन दैट दिस इज नॉट द टाइम फॉर अ वॉर. इन फैक्ट लास्ट ईयर Prime Minister Narendra Modi also met Volodymyr Zelensky at the backdrop of the G7 summit, if you guys would have read about it. And finally, agar hum baat kare, so India was an enthusiastic founder of BRICS, like I said, and the expansion is something that we had a problem with initially. And क्योंकि हमारी, अब तो हम लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर ही लिया है and with open arms, पर कहीं ना कहीं हम उनकी एफिकेसी को, ब्रिक्स की एफिकेसी को थोड़ा सा कम कर रहे हैं. और ब्रिक्स की एफिकेसी बहुत ज्यादा है. दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल सेज. क्यों ज्यादा है? क्योंकि दीज आर द न्यूली डेवलपिंग इकोनॉमीज. ब्रिक्स नाम ही इसलिए पड़ा था दैट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो बाद में आया था, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. इतनी अहमियत है इंडिया की, तो इंडिया को भी उसी तरीके से इसके साथ मिलके सारी की सारी कंट्रीज के साथ आगे बढ़ना चाहिए. वी शुड मेक श्योर दैट वी टेल ईच एंड एवरी रीजनल ग्रुपिंग व्हाट वी वांट फ्रॉम इट एंड व्हाट वी कैन डू फॉर देम. यस, एंड सो हेंस नाउ वी कैन सी दैट कहीं ना कहीं आवर स्टांस इज चेंजिंग, एंड राइटफुली सो. And so the day is not far away that we are able to put or exercise our influence in these regional groupings, और कहीं ना कहीं ये सारी की सारी कंट्रीज साथ में मिलके वर्ल्ड इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाए, और साथ ही साथ इस तरीके से बढ़ाए ताकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े. यस, सो रशिया हैज ऑल्सो of course realize the potential of the BRICS. BRICS की summit इस साल रशिया में ही होगी. Yes, and the potential of the BRICS is seen by the amount of world population that we have, the amount of contribution to the world economy, the amount of contribution to the global GDP that we have. So this is too important a regional grouping to be a passive member of. We need to be actively pursuing our goals and integrating it with the world goals. Yes, so that is what
this particular article was all about. I hope that you have understood whatever we have tried to say. इस particular topic में से आपके prelims के लिए things such as what is AUKUS, why was it made, what is BRICS, when was it made, how many members joined in this year, right? What is Quad, why was it made, what is its influence, ये सारी की सारी चीज़ों को आप revise कर सकते हैं. And I will see you soon with a new topic. Thank you very much.